हाँ लिखो, डेथ ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट लाइन लिखो, डेथ डेथ ऑफ अ पार्टनर। मेरा बर्थडे नहीं बेटा शंकर, इट्स नॉट माय बर्थडे। लिखो, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये हेडिंग था डेथ ऑफ पार्टनर, उसके नीचे भी यही लिखना है, डेथ ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द रीजंस is one of the reasons for retirement of that partner. Retirement of that partner. Therefore, therefore, all the following adjustments, all the following adjustments which are all the following adjustments done which are done at the time of retirement, which are done at the time of retirement are also given effect, are also given effect on death of partner, on death of partner. Number one, next line, number one, change in profit sharing ratio. Number two, revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. Number three, adjustment of goodwill. Adjustment of goodwill. Number four, sharing of balance in general reserve. Sharing of balance in general reserve. Serial number 5, settlement of deceased partner's capital. Settlement of deceased, DECEASED, settlement of deceased मतलब dead, deceased partners capital account by transferring it to his legal executor's loan account, by transferring it
to his legal executor's loan account. नेक्स्ट लाइन लिखो, apart from the above, apart from the above, one more adjustment one more adjustment is to be done on death of partner, on death of partner, full stop. कंटिन्यू करो उसी में, अ पार्टनर मे डाई, a partner may die anytime, anytime, even in between the year, even in between the year. Full stop. Since the deceased partner, since the deceased partner was partner in the firm, was partner in the firm till the date of his death, till the date of his death, comma, his legal representatives, his legal representatives will be entitled, his legal representatives will be entitled to get his share, to get his share in profits, in profits till the date of his death, till the date of his death. Full stop. Profit till the date of death, profit till the date of death, profit till the date of death is estimated, is estimated on the basis of, on the basis of profits of, profits of one or more previous years, one or more previous years, and deceased partner's share, and deceased partner's share is accounted
as under is accounted as under. क्या एंट्री करते याद आ रहा है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू deceased partners capital account. That's it. Third problem. The following is the balance sheet of Messrs TMR as at 31st March 2022. They share profits equally. Balance sheet as at 31st March 2022. Capitals Tina, Meena, Rita. General Reserve, trade payables. Machinery, furniture, fixtures, cash, inventories, trade receivables, less provision for doubtful debts. Rita died on 5th April 2022 and the following agreement was to be put into effect. Assets were to be revalued, machinery, furniture, inventory. Goodwill was valued at 18,000 and was to be credited with his share without using a goodwill account. Rupees 6,000 was to be paid away to the executors of dead partner. After death of Rita, Tina and Meena share profits equally. Prepare evaluation account and capital accounts and also show journal entry for goodwill adjustment. लिखो. In the books of Messrs TMR, in the books of, हाँ बेटा अंश आज भेजता हूँ मैं तेरे को पीडीएफ थेरी बुक का. मैं एक्चुअली गड़बड़ में था, स्किप हो गया मेरे दिमाग से, भेजता हूँ. In the books of Messrs TMR, revaluation account, 8 lines, 8 lines. Partners capital account, 3 columns. Tina, Meena, Rita. For 8 lines, draw the format. बहुत पुरानी बात है, जब मोबाइल सबके पास नहीं हुआ करते थे, तब नया नया मैं टीचिंग में आया था, तो एक स्टूडेंट गाना गाने स्टेज पे आया,
तो उसका दोस्त जो था ना, वो कैलकुलेटर ऐसा करके ये कर रहा था उसके सामने रिकॉर्डिंग किए जैसा। मेरे को इतना हंसना आ रहा था, मैंने ऐसे क्या कर रहा है ये कैलकुलेटर, ऐसे रिकॉर्डिंग किए जैसा। मैं उसको बोला कि क्या कर रहा है, कैलकुलेटर ही है। बोले सर, सामने वाले को, गाने वाले को कॉन्फिडेंस आता है कि उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है और वो कितना सेलिब्रिटी फील आता है उसको। तो बोले उसने बोला है, बोले जो गाना गा रहा है, कि बोले तू ऐसा थोड़ा ये फील देना मेरे को। बोले बाप रे, हाँ ना, कमाल है ना। ऐसे अगर कैमरा बोल के यूज हो गया तो क्या बात है। चलो करे स्टार्ट। शाउन आना, करूँगा स्टार्ट। तो भाई मंडे अपना डन। मंडे मॉर्निंग वी विल बी टेकिंग 10 to 12। तो अच्छा, तुम्हारा इंग्लिश भी है क्या? 6 को है ना? हाँ तो मंडे है ना, तो कितने बजे है? 12 बजे है ना? हाँ ठीक है ना, तो अपन 10 से 12 ले लेते हैं ना। 10 से 12 अकाउंट्स होगा, वापस दोपहर में 2:30 से 4:30 भी होगा अकाउंट्स। क्यों, तो ट्यूसडे को वापस तुम्हारा टेस्ट है। टेस्ट कितनी देर का है, टाइमिंग क्या है? 2 घंटे का है, टाइमिंग क्या है? 9 से 11 है ना? तो ट्यूसडे को भी अपन 11 से 1 तो ले ही सकते फिर। देखता हूँ मैं। नहीं नहीं, वेडनेसडे के पहले खत्म करना है इसलिए, मतलब वेडनेसडे लास्ट डे है ना। कल मैं नहीं हूँ, संडे को भी लेक्चर नहीं है अपना। ऑनलाइन गाइज, टुमारो आई एम नॉट देयर। कल लेक्चर नहीं होगा, और परसों भी नहीं होगा, संडे के दिन भी। दोनों दिन मैं नहीं हूँ। चलो करें स्टार्ट। वैसे कल और परसों के लिए मैं अगर आपको लिंक, ठीक है देखते हैं, लिंक देते तो एनपीओ का लिंक दूं क्या? सेम ही तो है। क्या क्या? रिफंड? कौन बोला रिफंड? अगर इस बैच की फीस भरी है तो मेरे को भी मिलने दे भाई। रिफंड बोल रहा है, कमाल है यार। रेगुलर बैच का रिफंड मांगो तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ, अरे रिवीजन बैच का रिफंड मांग रहे। रिफंड के लिए बेसिक पहले फीस तो भरनी चाहिए। कमाल कर रहे हो यार पांडे जी, क्या गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे यार तुम्हारे। कैपिटल अकाउंट? हाँ, क्या हो गया उसको? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन कैपिटल अकाउंट। टीना कॉलम 24,600। टीना कॉलम 24,600। मीना कॉलम 24,600। ए भाई लिख रहा ना तू? हाँ। रीटा कॉलम 27,000। रीटा बाईंच्या कॉलम मध्ये 27,000. There is general reserve of 9,000. It belongs to whom? All the old partners, and in their profit sharing ratio which happens to be equal. By general reserve, by general reserve, yes guys, without Kelsey I'll tell you it is 3,000, 3,000, 3,000. I know with Kelsey भी उतना ही आ रहा है. Rita died on 5th April. Oh. कृष्णा, अरे कोई जाए तो पार्टी नहीं रे, 2 मिनट की शांति रखते हैं. Assets were to be revalued. Machinery 35,100. Book value is 30,000. Go to revaluation account. Buy machinery 5,100.
By machinery 5100. Debit side, to furniture 3000. To furniture 3000. 16800 था, 13800 हो गया. To inventory 1200. That's it, finished. प्रॉफिट है या लॉस है बताओ. प्रॉफिट है, हाउ मच? 900. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर 900. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर 900. Inner column, Tina, Mina, Rita. 1/3, 1/3, 1/3. 300, 300, 300. Partners capital account credit side by revaluation account. बोलो. 300, 300, 300. Goodwill was valued at 18,000 and was to be credited with his share without using goodwill account. बोलते डायरेक्ट कैपिटल में एडजस्ट करना है. वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. टीना, मीना, रीटा. न्यू रेशो, किसकी डेथ हुई है? न्यू रेशो हाफ हाफ है. ओल्ड रेशो 1/3, 1/3, 1/3. Gaining plus oblique losing minus ratio. माइनस नहीं, +1/6 आएगा ना. -1/3 बोल तो -2/6. डेबिट, डेबिट, क्रेडिट. बस बेटा हमें बहुत टाइम पास हो गया, चलो ध्यान दो. बहुत बातें हो गई. पार्थ, कृष्णा, ध्यान दो. क्या क्या होगा? 3, 3, 6. 3, 3, 6. Next line, the accounting entry will be Tina's capital account debit 3,000. Mina's capital account debit 3,000. To Rita's capital account
6,000. Go to partner's capital account and record the effects. Give the effects. Debit side to Rita capital account. To Rita capital account. Tina column 3,000. Meena column 3,000. हो गया. Credit side by Tina capital account. Rita column 3,000. By Meena capital account. Again Rita column 3,000. 6,000 रुपए डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को पे किए डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट रीटा कॉलम 6,000. हो गया. नेक्स्ट लाइन टू रीटाज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. टू रीटाज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट रीटा कॉलम एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर. रीटा कॉलम कितना 30,600. 300. 30,300. हो गया. बाकी दोनों पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंसेस ढूंढो कैपिटल में. टू बैलेंस कैरिड डाउन. टू बैलेंस कैरिड डाउन. कितना कितना दोनों का भी 24,900. 24,900 आया. एवरीबडी गॉट इट. प्रॉब्लम नंबर 8. 8. It was provided under the partnership agreement between Ram, Lakshman and Bharat that in the event of death of a partner, the survivors would have to purchase his share in the firm on the following terms. Goodwill is to be valued at 3 years purchase of simple average profit of last 4 completed years. Outstanding amount due to representative of deceased partner shall be paid in 4 equal half-yearly installments commencing 6 months after the death, plus interest at the rate of 5% per annum on outstanding dues. They shared profits and losses in the ratio of 9:4:3. Ram died on 30th September 2020 and partners capital account on that date were Ram, Lakshman, Bharat. Ram's current account on 30th September 2020 after crediting his share of profit to that date however showed a debit balance of 1920. Profits, firm profits were for the year ended पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स है. शो राम्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऑफ राम टिल फुल पेमेंट इज मेड टू राम्स एग्जीक्यूटर्स. सिंपल ही है. 10 मार्क के लिए वैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सब गुडविल ही है मेन. तो इसमें एडजस्टमेंट वो भी सिर्फ वैल्यूएशन करना है. लिखो बेटा. इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और ध्यान रहे डेट कॉलम बनाना. डेट कॉलम लगेगा. इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म राम्स कैपिटल अकाउंट. सिर्फ राम का ही कैपिटल अकाउंट बोला है. राम्स कैपिटल अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स रुपीज. डेट पर्टिकुलर्स रुपीज. जस्ट फॉर 6 लाइन्स.
just for 6 lines, and same format for Ram's executors loan account. Ram's executors loan account Ram's executors loan account ten to 12 lines. Date particulars rupees, date particulars rupees. Correct, start. It was provided under the partnership agreement between Ram, Lakshman and Bharat that in the event of death of a partner, the survivors would have to purchase his share in the firm on the following terms. गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है और ये दिया है, बट उसके पहले पार्टनर की डेथ कब हुई? 30th सितंबर को, और उस दिन उसका कैपिटल कितना था? कैपिटल अकाउंट 30th सितंबर 20, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,600. 21,600. ये भी लिखा है प्रॉब्लम में, करंट अकाउंट में उस दिन डेबिट बैलेंस था बेटा, बोल तो निगेटिव बैलेंस था करंट अकाउंट में। अब पार्टनर की डेथ हो गई है तो वो डेबिट बैलेंस भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना फिर। डेबिट साइड टू राम करंट अकाउंट कितना? 1920. वर्किंग नोट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल basis
3 years purchase of average profit of previous 4 completed years. Guys, what do you mean by completed years? मैं आपको बोलता हूँ चैलेंज क्या आता है. डेथ इन बिटवीन द ईयर होती है ना. तो 4 प्रीवियस ईयर बोला तो फिर अप टू द डेट ऑफ डेथ के 4 साल लेने के कि क्या? समझा क्या? तो प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स का मतलब प्रीवियस 4 अकाउंटिंग ईयर्स, जो 4 साल पूरे कंप्लीट हो चुके वो. डेथ अगर इन बिटवीन द ईयर हुई है तो वो तो आधा ही साल हुआ ना. फिर आधा अधूरा. आधा बोल तो जरूरी नहीं आधा हुआ हुआ. इस एग्जांपल में आधा हुआ है कि तो 30 सितंबर को डेथ हुई है. वो साल नहीं लेना है. कंप्लीटेड ईयर्स बोल तो प्रीवियस 4 अकाउंटिंग ईयर्स. कहते का एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दिए प्रॉब्लम में. बोलो लाइन से कितना कितना है. 70,400 प्लस 56 प्लस 48 प्लस 17,408 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स. क्या बता रहे हैं आप ये मेरे को? एवरेज. एवरेज बता रहे हैं ना. 48 072. Therefore goodwill is equal to 3 years into 48,072. 1 144,216. अब किसकी डेथ हुई है? राम शेयर इन गुडविल. 9/16. करेक्ट ना? बोलो. एटी वन 122. 81,122. अभी बाकी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बोले भी नहीं है, इसलिए मैंने वो गेनिंग लूजिंग रेशियो निकाला नहीं, सिर्फ इसका ही शेयर निकाल दिया. 30 सितंबर बाय शेयर इन गुडविल कितना? 81. ये एवरेज प्रॉफिट कहाँ से लिया? अरे बेटा प्रॉफिट्स दिए ना पिछले 4 साल के, उसका एवरेज किया. पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स प्रॉब्लम में दिए हुए हैं ना.
to Ram's executor's loan account total is 1,02,722. One lakh 802. Executor's loan account credit side by Ram Capital account. One lakh 802. I want all of you to read B adjustment given in the problem. Outstanding amount due to representative of deceased partner shall be paid in 4 equal half-yearly installments commencing 6 months after the death plus interest at the rate of 5% per annum on outstanding dues. 6 महीने बाद पेमेंट स्टार्ट होगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट भी तो लेना पड़ेगा फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे. पहला पेमेंट कब आएगा 6 महीने बाद बोला तो 31 मार्च 21 को. तो 31 मार्च 21 को पहले इंटरेस्ट भी तो लेना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ब्रैकेट 1,08,02 into 5% into 6/12. 2520 बराबर 2520. डेबिट साइड 31 March 21 to bank account. Look at the screen. 1,08,02 divided by 4 plus 2520. इंटरेस्ट तो पे करना ही है ना और 4 इंस्टॉलमेंट में इक्वली पे करना है वो अमाउंट जो है वो कहता है का 1,08,02 डिवाइडेड बाय 4 बोला तो प्रिंसिपल अमाउंट 25,200.50 प्लस 2520 27,721. या तो एक काम करो ना 22 दे दे क्या वो तो हाँ ना वो राउंडिंग ऑफ करे वो 2 रुपए ऊपर के उस वजह से 50 पैसे आ रहा है ना वो. ठीक है लो 21 लो क्या बच्चे रे कैसे ढोकले रे. अरे मैं वो 2 रुपए ऊपर के ज्यादा दे रहा तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं लो लो लो. All ढोकलास together except me. 2 balance carried down. एक लाख 3,322. $75 601. 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस 30th September बाय
इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने पे चार्ज करूँ रे? 75,601 पे 5% 6 महीने के लिए। 1890। डेबिट साइड 30 सितंबर टू बैंक अकाउंट। कितना पे करूं? 1,08,02 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, इंटू नहीं प्लस 1890। समझा क्या? बोल तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। 27,091। अब हो गया, वो हिसाब क्लियर हो जाएगा। अब 2 बार 50-50 पैसे ज्यादा दे दिए। अभी क्लोज मत करना अकाउंट। ईयर एंडिंग डेट नहीं है, 6 महीने हुए हैं। 31 मार्च को ईयर एंडिंग डेट है। 31 मार्च 22। फिर से इंटरेस्ट आएगा। बट अब इंटरेस्ट कितने पे आएगा? लुक एट द स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीन। 75,601 का बैलेंस बचा था साल के बिगिनिंग में, उसमें से अभी प्रिंसिपल अमाउंट कितना रीपे किया है? प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ, 25,201। बाकी का इंटरेस्ट था ना, इंटू 5% इंटू 6/12। वन टू 31 मार्च 22 टू बैंक अकाउंट। अब 50 पैसे कम देना। अब 2 बार दे दिए ज्यादा। कितना रे? 26,460। बरोबर है? क्या हो गया? मेरे को पूछ नहीं आ रहा तो पूछना। दिखता डरावना हूं मैं, हूं नहीं वैसा। पूछ सकता है तू। सीधा साधा गरीब आदमी हूं मैं, नाम की तरह। टोटल पच्चीस 200। 1 अप्रैल 22। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,200। 30 सितंबर बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट
बोलो। 630 debit side to bank account. To bank account. Rupees 1,08,02 divided by 4 plus 630. बोलो। 258 टैली हो जाएगा। टैली हो रहा है क्या? टैली हो रहा है क्या देखो। आप में से कितने लोगों का अटेम्प्ट पुणे से ही है? एग्जाम पुणे से? अच्छा, सभी लोग पुणे से दे रहे हैं। बाहर से कितने? उल्टा पूछना चाहिए था। कम है बाहर से देने वाले। ओके। ऐसे कितने लोग हैं कि जो पुणे के बाहर के हैं लेकिन अभी दिवाली में घर नहीं जा रहे? घर नहीं जा रहे? पढ़ाई करने वाले यहीं पे दिवाली में? घर नहीं जा रहे तुम लोग? हाँ। क्यों नहीं मिलते ना अपन दिवाली पे? यस। डन। करते प्लान वैसा। दिवाली एट माई प्लेस। गरीब के झोपड़े में। आओ ना। बट एक जनरल पूछ रहा हूँ, दिवाली पे घर कैसे के नहीं जा रहे तुम? क्या क्या? 3,500 रुपए टिकट? कहाँ जाना है? खामगांव? 3,500 रुपए? हाफ टिकट? बहुत ज्यादा हो गया 3,500। टू टू मच। ऐसे नॉर्मल में मेरे हिसाब से कुछ 1,000-1,100 है ना अकोला का। खामगांव पहले आता है ना अकोला के। हाँ, 1,000-1,100 रुपए मेरे को जहां तक मालूम है। 3,500 बहुत ज्यादा हो गया रे। ये लूट है यार, ये तो मतलब सरासर मतलब लूट है ये तो। नहीं, जीएसटी वीएसटी ठीक है यार, बट इट इज नॉट लॉजिकल। नहीं, वही बता रहा हूँ, पेपर में भी बहुत आ रहा है रोज उसके ऊपर, बट कुछ नहीं कर सकते। एक्सप्लॉयटेशन है ये, मतलब गलत चीज है ये। तेच ना, राम्स एक्झिक्युटर्स लोन अकाउंटच असतं. हो रे. तेच म्हणतोय. राम्स एक्झिक्युटर्स अकाउंट म्हणजेच राम्स एक्झिक्युटर्स लोन अकाउंट असतं. डिसीज पार्टनरचा जो एक्झिक्युटर आहे, लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह, त्यांचं लोनच असणार ना फॉर्म मध्ये. ते पार्टनर थोडीच असतात. गाईज, गाईज, 7th प्रॉब्लम विच इज ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसीज ट्रीटमेंट. एक्चुअली एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है 5 मार्क के लिए. और ध्यान से सुनो, एग्जाम में उन्होंने एक मेथड से पूछा. ऐसे 3 मेथड्स है जो मैंने रेगुलर बैच में सिखाया जॉइंट लाइफ पॉलिसी के. एक काम करते हैं, रिस्क नहीं लेते. एग्जाम में इस मेथड से इस एग्जाम में पूछा हुआ है, शायद आने वाले एग्जाम में किसी और मेथड से पूछ ले. तो यही सम हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे. थोड़ा टाइम जाएगा बेटा अपना, बट क्या है ना, प्रिपेयर किया हुआ बेटर है. जब एक एक मेथड से सॉल्व कर ही रहे तो और बचे हुए 2 मेथड से भी कर लेते. आधा घंटा ज़्यादा जाएगा बट ठीक है. हेडिंग लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑब्लिक सेवरल लाइफ पॉलिसीज. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑब्लिक several life policies.
एक 2 मिनट सिर्फ सुन लो अच्छे से, फिर मैं एक एक मेथड से सॉल्व कराता हूँ तुमको। ये क्या है बेटा एग्जैक्टली जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सेवरल लाइफ पॉलिसीज होते क्या है, एक जनरल आइडिया देता हूँ आपको। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी टेकन अप बाय पार्टनरशिप फर्म ऑन लाइव्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली। एक सिंगल पॉलिसी सारे पार्टनर के लाइफ पे ली जाती है, एक ही पॉलिसी के थ्रू सारे पार्टनर्स के लाइफ पे की रिस्क कवर की जाती है, उसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पार्टनरशिप फर्म में ये जो लाइफ पॉलिसीज होते हैं पार्टनर्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं ये। द रीजन बीइंग, एक चीज समझ के लो आप लोग, पार्टनर की डेथ कभी भी किसी भी कारण से हो सकती है। इट इज द ओनली वन थिंग विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। गॉड हैज केप्ट ओनली दैट वन थिंग इन हिज हैंड। कब किसकी डोरी कटेगी अपने को मालूम नहीं। जोक्स अपार्ट, बोलने का मतलब ये है कि एनी टाइम एनी कॉन्टिजेंसी में हैपन, एंड पार्टनर की डेथ कभी भी हो सकती है। इशू क्या आता है ना पार्टनरशिप फर्म में कि पार्टनर की डेथ अगर इन बिटवीन कभी भी हो गई, अचानक सडन डेथ हो गई, देखो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है और मालूम है कि भाई इलनेस है और इसमें से बाहर नहीं आने वाले, तो फिर वैसे प्रोविजन बना के भी रखते कि भाई ये पार्टनर कभी भी जा सकते हैं, तो उनका सेटलमेंट जो भी करना पड़ेगा वो हिसाब से पार्टनरशिप फर्म रेडी रहेगा। लेकिन अगर सडन डेथ हो गई तो उसका जो आउटस्टैंडिंग कैपिटल है जिसकी डेथ हो गई, उसका उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को फैमिली को देना पड़ेगा ना रे। कितना भी बोला तो वो फॉर्म में पार्टनर था, इसका मतलब वो अर्निंग मेंबर था फैमिली का। तो अगर वो चला गया तो उसका जो भी आउटस्टैंडिंग कैपिटल है वो उसके फैमिली को देना पड़ेगा ना। अभी मेरे को बोलो सडनली पार्टनरशिप फॉर्म में से पैसा निकाल के देना इतना आसान होगा क्या? सडनली अभी किसी की डेथ हो गई, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स की डेथ हो गई, सडन डेथ, मालूम नहीं था, कुछ अंदाजा नहीं था, कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई, एक्स की डेथ हो गई। अब जब सारे एडजस्टमेंट्स किए गए डेथ पे जो भी होते हैं, तो उसके बाद में ध्यान में आया कि भाई टोटल 10 लाख रुपए उसके फैमिली को पेएबल है, उसका आउटस्टैंडिंग कैपिटल 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए सडनली बिजनेस में से निकाल के देना इतना आसान लगता है क्या तुमको? ऐसे ऐसे नहीं होता। तो फिर ऐसे टाइम पे अब पैसा देना भी जरूरी है फैमिली को, और फर्म में चैलेंज आएगा भी। तो इसलिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या सेवरल लाइफ पॉलिसीज लिए जाते हैं कि बाई चांस अगर कभी डेथ हो गई पार्टनर की, तो पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो उसके पैसे फॉर्म में आ जाए, फॉर्म में उसके पैसे आ जाएंगे तो उसमें से फिर वो सेटलमेंट करना आसान रहेगा। दैट इज द पर्पज बिहाइंड टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज इन अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के पीछे ये रीजन है। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो सकती है या तो सेवरल लाइफ पॉलिसी हो सकती है। दो टाइप के पॉलिसीज होते हैं। As the name says, joint life policy means the policy taken jointly on the lives of all the partners. सारे पार्टनर के लाइफ पे ली गई जॉइंट पॉलिसी, इट इज नोन एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सेवरल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सेपरेट। व्हेन फॉर ईच पार्टनर अ सेपरेट लाइफ पॉलिसी इज टेकन, जब हर पार्टनर के लिए एक सेपरेट पॉलिसी ली जाती है, उसको बोलते हैं सेवरल लाइफ पॉलिसीज। लेट इट बी जॉइंट लाइफ, लेट इट बी सेवरल लाइफ, पॉलिसी ले कौन रहा है? फर्म। फर्म अगर ले रहा है तो प्रीमियम पे कौन कर रहा है? फर्म। फर्म पे कर रहा है बोल तो द एक्सपेंस ऑफ प्रीमियम इज बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स। फर्म पे कर रहा है बोल तो सारे पार्टनर्स वो एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं ना। तो बेटा वो पॉलिसीज में, लेट इट बी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लेट इट बी सेवरल लाइफ पॉलिसी, वो पॉलिसीज में सारे पार्टनर्स का शेयरिंग रहेगा। All the partners will have sharing in those policies. The reason being these policies are taken up by the firm and not by individual partners. Individual partner ने नहीं लिया हुआ वो पॉलिसी, वो पॉलिसी किसने लिया हुआ है? फर्म ने लिया हुआ है। और फर्म ने लिया है तो फर्म ही उसका प्रीमियम पे कर रहा है, और फर्म ही अगर प्रीमियम पे कर रहा है तो वो प्रीमियम की कॉस्ट सारे पार्टनर्स बेयर कर रहे हैं। तो सारे पार्टनर्स ने अगर कॉस्ट बेयर किया तो सारे पार्टनर्स का उसमें शेयरिंग रहेगा ना। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में बैठाना है वो ये है, दीज पॉलिसीज आर टेकन अप बाय द फर्म। फर्म ने लिए हुए पॉलिसीज है। अब ये जो पॉलिसी लिए जाते हैं उसके ऊपर प्रीमियम पे होता है, ये प्रीमियम जो पे होता है उसकी अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए, इसके 3 मेथड्स है। लेट इट बी सेवरल लाइफ पॉलिसी, लेट इट बी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉलिसी कोई भी रहने दो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं जो प्रीमियम पे होता है उसके ऊपर। तो वो 3 मेथड अपने को समझने हैं, अभी सीखने हैं। एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है 7th वाला। वो एग्जाम में जब पूछा था तो वो एक एक मेथड से पूछा था सॉल्यूशन, अपन तीनों मेथड से करेंगे। लिखो।
Following are the methods following are the methods for accounting of for accounting of premium paid on joint oblique several life policies. Joint oblique several life policies. Method 1. Method 1. Premium paid is treated as an expense of the firm. Premium paid is treated as an expense of the firm. प्रॉब्लम सॉल्व करते करते समझाता हूं मेथड क्या है. सेवेंथ प्रॉब्लम. Ramakrishna and Raghu shared profits and losses in the ratio of 5 to 3 to 2. They took out a joint life policy in 2017 for 50,000, a premium of 3,000 being paid annually on 10 June. Surrender value of the policy on 31st December of various years was as follows. Rama retired on 15th April 2021 and the policy was surrendered. You are required to prepare joint life policy account from 2017 to 2021 assuming the policy account is maintained at surrender value basis. एक्चुअली ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये सेकंड मेथड है, लेकिन हम ये प्रॉब्लम को अब तीनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यही प्रॉब्लम अपन 3 बार सॉल्व करेंगे. लिखो प्रॉब्लम नंबर 7 पेज नंबर 27. प्रॉब्लम नंबर 7 पेज नंबर 27. बनाओ, एक ही अकाउंट बनाने का है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. Date particulars rupees. Date particulars rupees. Date particulars rupees. Date particulars rupees. More than half page. करो स्टार्ट. मे आई स्टार्ट? कब लिया पॉलिसी?
2017 में एनुअल प्रीमियम कितना है? 3,000 रुपये। तो 10 जून को पे करना है एनुअल प्रीमियम। 10th June 17 टू बैंक अकाउंट 3,000। I want all of you to read the heading of the method. Premium paid is treated as an expense of the firm। बोल तो ये जो प्रीमियम पे हुआ ये एक्सपेंस है फर्म का। मेरे को बोलो अगर एक्सपेंस है तो कोई भी एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं नॉर्मल में? P&L को ट्रांसफर कर देते हैं ईयर एंडिंग डेट को। क्रेडिट साइड 31 मार्च से नहीं 31 दिसंबर 17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3,000। 3,000 का प्रीमियम पे किया है। 3,000 का प्रीमियम एक्सपेंस बोल के P&L को डेबिट कर दिया तो ये अकाउंट टैली हो जाएगा। अकाउंट टैली हो जाएगा। ऐसे ही बेटा 2018, 19 और 20 ये 3 साल कंप्लीट करो। सेम सेम 18, 19, 20 3 साल कंप्लीट करो ऐसे ही। 10 जून को पे करो, 31 दिसंबर को P&L को ट्रांसफर करो। Pay it on 10 June every year and transfer on year ending date to profit and loss account। 2018 में करो, फिर 2019 में करो, 2020 में करो। हो गया? तीनों साल क्लोज किए बुक्स। 2021 में क्या हुआ है? राम रिटायर हुआ। सब लोग ध्यान से सुनो बेटा, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं ये मैच्योर कब होंगे? डेथ पे। पार्टनर की डेथ हुई तो मैच्योर होंगे। और अगर डेथ नहीं हुई तो उसके पहले अगर पॉलिसी सरेंडर करनी है, उसके पहले अगर पॉलिसी हमको कैंसिल करनी है तो तुमको सरेंडर करना पड़ता। रेगुलर बैच के बच्चों को तो तुरंत ध्यान में आना ही चाहिए, और नहीं आ रहा है तो वापस गाली खाने का ही काम है। सरेंडर में और मैच्योरिटी में फर्क क्या है? मैच्योरिटी पे पूरा अमाउंट मिलता है, पॉलिसी जितने की थी उतने। सरेंडर पे पूरा अमाउंट नहीं मिलता, क्यों? तो पॉलिसी मैच्योर नहीं हो रही है, बिफोर मैच्योरिटी आप उसको कैंसिल कर रहे हो। और हमेशा ध्यान में रखो पार्टनरशिप के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, लेट इट बी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लेट इट बी सेवरल लाइफ पॉलिसी, व्हेन विल इट मैच्योर? ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ हुई तो मैच्योर होता है। डेथ नहीं हुई तो तुम पॉलिसी को सरेंडर कर सकते, पर सरेंडर किया तो पूरा पैसा मिलता है क्या? नहीं। जिस दिन सरेंडर करोगे उस दिन का प्रोपोर्शनेट अमाउंट तुमको मिलता है। अब ये पॉलिसी थी कितने की ली हुई? पॉलिसी के अमाउंट पूछ रहा हूं मैं। 50,000 है।
पॉलिसी वॉज टेकन फॉर 50,000, 50,000 रुपए, लेकिन रिटायरमेंट हुआ है 15 अप्रैल को। रिटायरमेंट पे पॉलिसी मैच्योर नहीं होता, सरेंडर होता है। अभी 2020 के एंड का सरेंडर वैल्यू कितना है, दिया है प्रॉब्लम में, 3,600 है। तो रिटायरमेंट पे अगर पॉलिसी सरेंडर की तो ये जो लेटेस्ट सरेंडर वैल्यू है उतनी च मिलने वाली है, ओनली दैट मच इज गोइंग टू बी रिसीव्ड। तो 15 अप्रैल को तुमको पॉलिसी सरेंडर की है तो उतना पैसा मिलेगा। क्रेडिट साइड 15 अप्रैल 2021 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट सरेंडर वैल्यू कितना, रिसेंट सरेंडर वैल्यू कितना है, 3,600। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, मेरे को बोलो जब प्रीमियम पे किया वो अपने एक्सपेंस ट्रीट करके P&L को डेबिट किया है, तो जो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, फिर वो सरेंडर हो या मैच्योरिटी रहो, मैच्योरिटी अमाउंट रहो, या तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा, सरेंडर किया तो, डेथ हो गई तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, जो भी मिलेगा फिर वो इनकम रहेगा। अच्छा किसने पे किया था प्रीमियम, फर्म ने, वो तो सबने बेयर किया था, तो अब जो पैसा मिलेगा वो सबका रहेगा ना। तो ये 3,600 रुपए जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हुई उसको मिलेगा क्या सिर्फ, ये फर्म का है भाई, किसने पे किया हुआ है प्रीमियम, फर्म ने, तो इसमें सबका शेयरिंग है, तो ये सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा बोल तो डेबिट में 15 अप्रैल 2021 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,600, इनर कॉलम रामा कृष्णा रघु, रेशो क्या है, 5/10, 3/10, 2/10, 1800, 1080, 720 टोटल। समझा क्या किया, समझा क्या किया, इसके ही जगह अगर ऐसा देते कि भाई ऑन 15 अप्रैल 2021 वन ऑफ द पार्टनर्स डाइड, अगर डाइड बोलते तो ये बाय बैंक जो 3,600 है उसके बजाय बाय बैंक 50,000 रुपये आता, फिर मैच्योरिटी वैल्यू मिलती। कहते का एनी प्रॉब्लम, ये पहला मेथड है, ये मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं बोला था एग्जाम में, एग्जाम में दूसरे मेथड से बोला था, बट हम तीनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ऑनलाइन गाइस समझा क्या ये मेथड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन समझा क्या, पक्का। मेथड 2, मेथड 2, प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड is treated, is treated as an asset of the firm, as an asset of the firm, bracket, to the extent of surrender value of the policy,
to the extent of surrender value of the policy. मैं आपको मेथड समझाता हूँ, आप एक काम करो, आप पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बना लो, मोर देन हाफ पेज। अब अपने पास टाइम नहीं है, otherwise today morning I enjoyed breakfast with one of our past students. He cleared CA exam in first attempt. Eric Fernandez first attempt में CA बना है, and he did his articles from Ernst and Young, and now also he's working with Ernst and Young. Ernst and Young सुना है, E&Y, one of the big fours, जो big four firms है CA के all over globe, उसमें का EY, Ernst and Young, वहाँ पे वो अभी जॉब कर रहा है। एंड ज़बरदस्त बंदा है। तो वो तो पहले से ही मतलब वो क्लास में वो था ही, वैसे क्लास में प्रेजेंटेशन देना, और ये डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसने प्रेजेंट किया हुआ है इंटर के बैच में। फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड है, पिछले साल ही सीए हो गया हो। तो वो 2-3 बार आके गया मिलने को, बट समहाउ मैं मिल ही नहीं पाया उसके साथ। तो उसका पिछले हफ्ते में भी मैसेज आया था, मैं बोला ना आपको कि बिशप्स में उसका वो ये था, बैंड था, वो बैंड बजाता है, बैंड का पार्ट है वो एक, तो गिटार वगैरह बजाता है वो। तो जा नहीं पाया मैं, तो फिर बोला कि सर एटलीस्ट, भाई साल भर हो गया सर सीईओ के, अब तो टाइम दे दो, मिलो। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिलते हैं। आज ब्रेकफास्ट में मिला था, 1-1.5 घंटा बात किया। लेकिन ऐसे मतलब सच्ची में ऐसे बच्चों को ना क्लास में लाना चाहिए, ऐसे मेरे को लगता है। ये रोल मॉडल बनने चाहिए तुम्हारे। स्टूडेंट ही है अभी, लेकिन उसके जो थॉट प्रोसेस है, इतनी क्लैरिटी है। एंड नाउ ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड ही वांट्स टू कंप्लीट हिज एमबीए थ्रू आईआईएम। आईआईएम का एम कर रहा है, और हो जाएगा भी वो आईआईएम में। तो मतलब एग्जैक्ट क्या स्टूडेंट लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं ना, उसके साथ तुमको और अच्छे से डिस्कस करने आएंगे। कई बार क्या होता है ना, प्रोफेसर का बोला हुआ बात, एक माइंडसेट रहता है बच्चों का कि प्रोफेसर का तो काम ही है बोलने का। तो जब एक स्टूडेंट तुम्हारे में से ही कोई है जो जिसने कुछ अचीव किया है, तो वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है। अब अभी इस बैच में अपने पास टाइम है नहीं, नहीं तो सवेरे में उसको बोला कि यार एरिक, तेरे को एक दिन क्लास में बुलाता हूँ कभी तो भी, बाद में इंटर में तो इंटर में। बट ऐसे ज़बरदस्त बंदा है। ऐसे अपने को हर बैच में दो चार बच्चे मिलते हैं जो बाद में सीए बनने के बाद में ध्यान में आता है कि एक अलग ही ब्रीड है ये। तो बहुत बहुत होशियार बंदा। वो तो टाइम पास की जगह टाइम पास भी उतना ही, गिटारिस्ट है, गिटार विटार बजाता है, मस्त फुटबॉल खेलता है बहुत अच्छा। एट द सेम टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड है, ईवाई जैसे फॉर्म में आज जॉब कर रहा है। तो परफेक्ट सेट है लाइफ। कंक्लूजन ये है, सीए बनो और सर को ब्रेकफास्ट पे बुलाओ। क्या 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 बोले मैडम? बोलो बोलो बोलो, क्या बोले हो? अरे बोलना। अच्छा मैं ही बुलाऊं? चलो सेकंड मेथड, premium paid is treated as an asset of the firm to the extent of surrender value. मैं समझाता हूं आपको ये मेथड क्या है, ध्यान दो मेरे पास। तुम जो तुम जो प्रीमियम पे करते हो, उसमें का एक सर्टन पोर्शन तुमको वापस मिलना, ये कंफर्म हो जाता है ना थ्रू सरेंडर वैल्यू। मतलब आप पॉलिसी को मैच्योर करो मत करो, वो तो डेथ हो ना हो, सरेंडर करके एक फिक्स्ड अमाउंट तो मिलना कंफर्म हो जाता है ना ईयर एंडिंग डेट पे। तो मेरे को बोलो, जितना अमाउंट मिलना कंफर्म हो जाता है, उतना तो तुम्हारा फिर एसेट है ना रे। उतना अमाउंट तुम्हारा एसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल से, एक एग्जांपल के लिए,
2017 के एंड में सरेंडर वैल्यू 0 दिया है, 2017 के एंड में। प्रॉब्लम में देखो, बोल तो पहले साल के एंड में अगर तुम पॉलिसी सरेंडर करोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, 0 है सरेंडर वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर में जो 3,000 रुपए पे किए, ये पूरा पूरा खर्चा है, इट शुड गो टू P&L अकाउंट। ये तो फर्स्ट ईयर के एंड में सरेंडर वैल्यू 0 है। बट जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो सेकंड ईयर के एंड में सरेंडर वैल्यू कितना है, 900 है। गाइज लिसन केयरफुली एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ध्यान दो। सेकंड ईयर के एंड में 900 रुपए का सरेंडर वैल्यू है। मतलब अगर तुम सरेंडर करते हो तो 900 रुपए मिलने कंफर्म हो गए। आई एम नॉट गोइंग टू सरेंडर, मैं सरेंडर नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू सरेंडर, बट कंफर्म हो गया ना 900 रुपए मिलना। सेकेंड ईयर में कितना तुम प्रीमियम पे कर रहे हो वापस, 3,000। अब मेरे को बोलो वो 3,000 में से 900 तो मिलना कंफर्म हो गया ना, तो फिर 3,000 का खर्चा है क्या, खर्चा कितना है 2,100, और बचा हुआ 900 तुम्हारा रिसीवेबल बोल के एसेट साइड में दिखना चाहिए। दैट इज सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, जितना प्रीमियम पे किया है वो पूरा की पूरा एक्सपेंस आउट कर दिया हमने P&L में। सेकंड मेथड में ऐसा नहीं होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ द एसेट, टू द एक्सटेंट ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इट विल बी शोन एज एन एसेट। जितना सरेंडर वैल्यू है उतना हम एसेट बोल के दिखाएंगे। बोल तो कैसे होगा मैं आपको बोलता हूं। चलो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में आओ। डेबिट साइड 10th June 17 टू बैंक अकाउंट 3,000, टू बैंक अकाउंट 3,000। वापिस एक बार पूछ रहा हूं, ईयर एंडिंग डेट को सरेंडर वैल्यू कितनी है, 0 है। वो तो ये पूरा पूरा P&L में जाना चाहिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगले साल 10th June 18 टू बैंक अकाउंट 3,000। 2018 के एंड में सरेंडर वैल्यू, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं बाद में लिखने को टाइम देता हूं आपको, ध्यान दो आप। अब मैं क्या करूंगा ना, 31 दिसंबर 2018 को, बोल तो 2018 की ईयर एंडिंग डेट को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 900 रुपए दिखाऊंगा मैं इसमें। मैं ये दिखाऊंगा कि 900 रुपए का मेरा एसेट है। तो फिर एक्सपेंस कितना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। झेप्पा क्या, सबको समझा, मेरा सच्चा स्टूडेंट कहाँ गया, यस सर, किधर है, हाँ। झेपा, बस तुम ही हो। जमते बाळांनो, वापिस एक बार बोल रहा हूँ, कल सैटरडे संडे विनोद सर को जो लेक्चर लेने मॉर्निंग में लेने दो। परसों अगर बोले तो बोल देना सुशील सर लेने वाले मॉर्निंग में, 10 से 12। मंडे 10 से 12 और 2:30 से 4:30। मंडे को अपने अकाउंट्स के 2 लेक्चर। मैथ्स के कितने लेक्चर्स है और, हाँ 7, 7 से 8।
कोई प्रॉब्लम नहीं ना, संडे को सैटरडे को जितने लेने उतने ले लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900। नहीं, वैसा अपना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक एक लेक्चर लेके भी वैसे हो जाना चाहिए, बट काय को रिस्क लेने का ना लास्ट डे का। कॉन्टिन्यूंसी बोल के नहीं आती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंडे को एक एक्स्ट्रा सवेरे ले लेते तो फिर एकदम कंफर्टेबल पोजीशन हो जाता है। वो परसों जो छुट्टी हुई बीच में, वो तबीयत की वजह से वो नहीं होती तो फिर बराबर हो जाता। बट अब वो क्या, ऐसी कॉन्टिन्यूंसी कुछ नहीं कर सकते। कल का भी मैं सवेरे जल्दी लेने वाला था, बट कल पॉसिबल नहीं हो रहा है जल्दी लेना। टुमारो एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग, so I'll be leaving morning 7 o'clock only. सोहम कुठे गेला? यायचं का घरी? चल ना, सोडतो तुला. परत संध्याकाळी घेऊन येईन सोबत. थांबणार आहे मी. 7-8 तास आहे तिथे. सकाळी 10ला तुला सोडतो घरी, परत संध्याकाळी 7-8ला निघू. बघ विचार कर, यायचं तर चल. मला ड्रायव्हिंग जमता का बघ माझ्यासोबत येऊन. 1st Jan 2019 to balance brought down 900. 10th June 19 to bank account 3000. बरोबर. अब 2019 में सरेंडर वैल्यू कितना है? हाँ, 2000 है. 31st December 19 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 2000. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1900. हम्म. किसको? नहीं बेटा, वो एक्सपेंस में नहीं डाले हो. नहीं ना. बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो 2000 है, उसमें वो पहले का 900 और इस साल और 1100 बढ़ गए. बराबर. सरेंडर वैल्यू जितना एसेट, अब सरेंडर वैल्यू कितनी हो गई? 2000 हो गई. पहले कितनी थी? 900. तो 1100 से बढ़ा दिया ना मैंने एसेट. 1120. अब बोलो आप, मैं क्या करूं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2000. फिर टू बैंक अकाउंट. अंश पूछ रहा है सर ज्यादातर कौन सा मेथड पूछते हैं? ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सा मेथड पूछते. कोई भी मेथड पूछ सकते, क्यों? तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में तीनों मेथड है. 31st December 20 बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोलो. 3600. अब बताओ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस हाउ मच? 1400. हो गया.
झेप रहा है क्या? हाँ बोलो हाँ। बस ज्यादा क्या तो फेल होते। ले, शंकर बोल रहा है जो अपने को नहीं आता समझो वो एग्जाम में आने वाला है। फर्स्ट जैन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600। अब 10 जून 2021 को प्रीमियम पे होता है। 10 जून डेट है लेकिन उसके पहले ही पार्टनर की रिटायरमेंट है। कब है? तो 15 अप्रैल को पार्टनर रिटायर हो गया तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी बाय बैंक अकाउंट। सरेंडर वैल्यू 3600। अकाउंट क्लोज हो जाएगा यहीं पे। 3600 3600। आया? ये मेथड से एग्जाम में पूछा था 5 मार्क के लिए। ये जो अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाया ना ये 5 मार्क के लिए आया था सेकंड मेथड। मेथड थ्री। मेथड थ्री। प्रीमियम पेड प्रीमियम पेड is treated is treated as an asset of the firm, as an asset of the firm, and a joint life policy reserve is maintained. And joint life policy reserve is maintained. थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये मेथड ना वैसे एक्चुअल में यूज नहीं होता रियल लाइफ में बट मेथड है और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया है। बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया ना तो इसमें 2 अकाउंट बनते हैं 10 मार्क के लिए भी आ सकता है। और यू नेवर नो अनप्रेडिक्टेबल होता है इंस्टीट्यूट का पेपर तो नॉट टू टेक द रिस्क बेटर वे कि अपन ये थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखो। अंडर दिस मेथड अंडर दिस मेथड the amount of annual premium paid the amount of annual premium paid is debited is debited to joint life policy account is debited to joint life policy account. Full stop. At the end of the year, at the end of the year, amount equal to premium paid
amount equal to premium paid is debited to profit and loss account, and credited to joint life policy reserve account, full stop. As the joint life policy account as joint life policy account and joint life policy reserve account comma, both are to be maintained both are to be maintained at surrender value comma, the surplus balances in both of these methods both of these accounts methods nahi accounts are adjusted against each other full stop. अकाउंटिंग एंट्रीज 3 एंट्रीज है वो लिखने हैं अपने को, 3 ही है. अकाउंटिंग एंट्रीज नंबर 1 for payment of premium on joint life policy account debit to bank account. Number 2, for transfer of profits to joint life policy reserve account. Profit and loss account debit
profit and loss account debit to joint life policy reserve account. Last entry. Adjustment of excess balances against each other. Number 3. Adjustment of excess balances against each other. Joint life policy reserve account debit. Joint life policy reserve account debit. Joint life policy reserve account debit to joint life policy account. To joint life policy account. That's it. अब एक्चुअली यही प्रॉब्लम इस मेथड से भी सॉल्व करना है, बट अब आज का टाइम खत्म हो गया, मुझे आगे इंटर की बैच है. कोई बात नहीं. मंडे मॉर्निंग वी आर मीटिंग एट 10 o'clock. मंडे को सवेरे 10 बजे अपन मिल रहे, तो मंडे मॉर्निंग 10 o'clock वी विल बी सॉल्विंग रिमेनिंग प्रॉब्लम्स. अभी 4th प्रॉब्लम बाकी है, 6th बाकी है. तो मंडे मॉर्निंग को अपन पार्टनरशिप कंप्लीट कर लेंगे 10 से 12 में, एंड मंडे को आफ्टरनून में 2:30 को वी विल स्टार्ट विथ एनपीओ लास्ट टॉपिक. ठीक है? Yes guys, so see you directly now on Monday. Thank you guys, bye bye.